Welcome back, everybody. This is our second video in NEET previous year question series for chapter Work, Energy and Power for class 11th physics. Before this, we made one video in this series, and that video you can find on our channel. Name of channel is Point Basics, and there is a dedicated playlist for these videos, and the name of that playlist is NEET previous year physics. Yeah, that you can find on our channel. And also we have started similar series for JEE mains previous years. You can also find those videos on our YouTube channel, and there is a special dedicated playlist for those videos also. And if you found these videos useful, then do like these videos, share these videos as much as possible, and subscribe to our channel. It helps a lot when you like, share and subscribe. And also, if you find this content useful, then and if you want to support us, then you can scan any of these QR codes and donate whatever amount you want. With this amount, we will be able to get new and improved books, better question papers, so we will be able to provide you more questions and also a better computer hardware, so that our future videos will be a high quality video in more better resolution, like in 4K or something. So with this, let's start today's video. And I think we have covered up to question number 20 in our previous video. This was our last question, and in this video we are going to move forward with question number 21. So let's start. So a ball of mass 2 kg and another of mass 4 kg are dropped together from a 60 feet tall building after fall of 30 feet each towards earth. Their respective kinetic energies will be in the ratio. So वो 60 फीट दोनों की दोनों ड्रॉप करते हैं, और 60 फीट ड्रॉप होने के बाद दोनों की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है. नो सपोज आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, इसको आप ड्रॉप करते हो और ये एस डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो स्टार्टिंग वेलोसिटी इसकी जीरो थी, और जो फाइनल वेलोसिटी होगी उसको आप निकाल सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला, दैट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एस. और u तो आपके पास जीरो है, तो यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है 2as. और अगर आप ये देखोगे, और यहाँ पे एक्सेलरेशन g होता है. सो ये जो वेलोसिटी है ये मास से इंडिपेंडेंट है, मींस मास पे डिपेंड नहीं करती, बिकॉज फॉर्मूला में कहीं पे मास नहीं आ रहा. सो वेलोसिटी दोनों के लिए इक्वल रहेगी, तो अब हमें यहाँ पे रेशियो निकालना है. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2, हमें यहाँ से पता है कि दोनों के लिए वेलोसिटीज इक्वल रहेंगी. सो हाफ m1 v स्क्वायर डिवाइड हाफ m2 v स्क्वायर. v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, और रेशियो आएगा m1 बाय m2, जो कि हो जाएगा 2/4 और 1:2. और यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता, फर्क कोई भी डिफरेंस नहीं होगा कि चाहे आप उनको 60 फीट से थ्रो करो और उन्होंने 30 फीट ट्रैवल किया हो या 40 फीट ट्रैवल किया हो, दोनों की वेलोसिटी सेम रहेंगी. तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो ऑलवेज मासेस के रेशियो में ही रहेगा. So it will be always m1 by m2, and from this as per statement ये हो जाएगा 1:2. Next question. A particle of mass m1 is moving with velocity v1 and another of mass m2 moving with velocity v2. Both have the same momentum, but their different kinetic energies are E1 and E2 respectively. Then हमें E1 और E2 का रेशियो बताना है, और यहाँ पे गिवन है that जो m1 है वो ग्रेटर देन है m2, एंड सेम मोमेंटम गिवन है कि दोनों के पास मोमेंटम इक्वल है. सो p1 इज इक्वल टू p2 v, हमें ये एज पर स्टेटमेंट गिवन है. नाउ वी नो दैट जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका मोमेंटम की टर्म में फॉर्मूला होता है p स्क्वायर बाय 2m, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को e से डिनोट किया गया है. सो वी राइट E1 is equal to P1 square by 2m1, and similarly E2 is equal to P2 square by 2m2.
दोनों को डिवाइड किया जा सकता है इजिली। सो E1 बाय E2 इक्वल्स टू P1 स्क्वायर बाय 2m1 P2 स्क्वायर बाय 2m2। वी नो मोमेंटम दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। मासेस भी एक दूसरे को 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा दोनों का रेशियो इज इक्वल टू m2 बाय m1। और यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखें तो अगर आप ये ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पे m1 बाय m1 लिखा हुआ है, मीन्स E1 इज इक्वल टू E2, तो ये ऑप्शन हम यहाँ पे नहीं दे पाएंगे। अगर आप यहाँ से देखें m1 इज ग्रेटर देन m2, इसका मीनिंग क्या होगा, m1 बाय m2 इज ग्रेटर देन 1। और अगर आप इसका रिवर्स कर दोगे तो m2 बाय m1 इज ग्रेट लेस देन 1। और ये m2 बाय n1 है, ये लेस देन 1 होगा एज पर यहाँ से हमने कंक्लूड किया। तो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट E1 by E2 is less than 1 or E1 is less than E2. So option A will be the right answer. आगे बढ़ते हैं। A stationary particle explode into two particles of masses m1 and m2 which move in opposite directions with velocity v1 and v2. The ratio of their kinetic energies E1 एंड E2 का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। सो ये सिमिलर क्वेश्चन हमने जस्ट अभी किया। अब बिकॉज हमारे पास एक स्टेशनरी पार्टिकल है और वो दो पार्टिकल्स में एक्सप्लोड होता है, मासेस m1 m2। स्टार्टिंग में सपोज मास था m1 प्लस m2, ये पार्टिकल है और इसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 है। बाद में ये ब्लास्ट हो जाता है, एक हिस्सा m1 हो जाता है, दूसरा हिस्सा m2 हो जाता है। सपोज इसके पास वेलोसिटी v1 है और इसके पास वेलोसिटी v2 है, तो वी नो दैट मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। तो स्टार्टिंग मोमेंटम हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू 0, बिकॉज स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 है, इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। और यहाँ से वी कैन राइट, ये 0 हो जाएगा, दैट m1 v1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2। और ये क्या है, मोमेंटम ऑफ p1 इक्वल टू नेगेटिव मोमेंटम ऑफ p2 एंड मैग्नीट्यूड वाइज p1 इक्वल्स टू p2। नाउ हमें काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो बताना है। एज पर प्रीवियस क्वेश्चन हमें पता है दैट E काइनेटिक एनर्जी E1 इज इक्वल टू P1 स्क्वायर बाय 2m1 एंड E2 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 स्क्वायर बाय 2m2। दोनों को डिवाइड करते हैं E1 बाय E2, वी गेट P1 स्क्वायर बाय 2m1 P2 स्क्वायर बाय 2m2। P1 इज इक्वल टू P2, मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों का स्क्वायर भी इक्वल होगा और 2 से 2 अगेन कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आएगा m2 बाय m1। और अगर हम कंपेयर करते हैं तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इंक्रीज बाय 300% देन परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। सो हम इसका रिलेशन पहले ही पीछे देख चुके हैं दैट जो काइनेटिक एनर्जी होती है, और इसको हम E से भी डिनोट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे E ही यूज करते हैं। E इज इक्वल टू P स्क्वायर बाय 2m। नाउ इस क्वेश्चन को करने के आपके पास दो मेथड्स हैं। पहला है यूजिंग एरर्स, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में यूनिट्स एंड डायमेंशन में वहां पे एरर्स पढ़े हैं, उसका यूज करके आप करें। बट उसके लिए कंडीशन क्या होती है दैट जो चेंज है, चेंज शुड बी स्मॉल, कि जो आपका चेंज है, जहां से जो है यहाँ पे चेंज है वो 300% का चेंज है। अगर आपको इसको एरर से सॉल्व करना है तो ये जो चेंज है ये 3%, 5% और मैक्सिमम 10% यहीं तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा का चेंज नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा का चेंज है तो आप एरर्स का यूज नहीं कर सकते, देन आपको फिर नॉर्मल प्रोसेस से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम वाया नॉर्मल प्रोसेस सॉल्व करते हैं इसको। तो स्टार्टिंग में तो E इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m था। नाउ मोमेंटम 300% इंक्रीज हो गया, मीन्स पहले मोमेंटम P था, फिर मोमेंटम P से 4p हो गया। इसके अंदर कितना इंक्रीज आया, 300% का इंक्रीज आ गया।
तो जो आपकी नई एनर्जी होगी ई डैश इक्वल्स टू 4p² बाय 2m। और हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि मास चेंज नहीं हुआ है, ओनली जो चेंजेस आए हैं वो वेलोसिटी के अंदर आए हैं, दैट्स वाई मोमेंटम इंक्रीज हुआ है, मास में कोई चेंज नहीं हुआ है। सो इट विल बिकम 16p² बाय 2m। वी मेड अ मिस्टेक, काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज हुआ है, नॉट इन मोमेंटम, सो E goes to 4p। So let me rub this all। तो अगेन जो चेंजेस हैं वो ज़्यादा हैं, तो हम यहाँ पे एरर एनालिसिस तो यूज़ नहीं कर सकते, हम नॉर्मल यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हमें मोमेंटम का चेंज निकालना है कि मोमेंटम में कितना चेंज होगा। तो मोमेंटम का पहले हम फॉर्मूला बना लेंगे, दैट P विल बी अंडर रूट ऑफ 2m E। तो ये हो गया हमारा इनिशियल मोमेंटम। नाउ जो एनर्जी है पहले E थी, वो E से क्या हो गई 4E होगी, उसमें 300% का इंक्रीज आ गया, 300% का। सो जो न्यू मोमेंटम हो जाएगा इट विल बी 2m, जो न्यू एनर्जी है दैट इज 4E। 4 का अंडर रूट आप बाहर निकालोगे तो 2 आ जाएगा, इट विल बी 2me। और ये क्या है आपके लिए ओरिजिनल वैल्यू ऑफ P, यानी कि 2p। यानी कि जो आपका मोमेंटम है, जो नया मोमेंटम है वो 2p है और पुराना मोमेंटम था p। तो कितना चेंज आया 100% का। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो कि जो डेल्टा p हो जाएगा इट विल बी 2p माइनस p इक्वल्स टू p। और अगर आप डेल्टा p बाय p करोगे इंटू 100, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, इट विल बी p बाय p इंटू 100 इक्वल्स टू 100%। सो अगर हम ऊपर से कंपेयर करें तो ये आ जाएगा ऑप्शन ए 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle is projected making an angle theta with horizontal having kinetic energy k, the kinetic energy at the highest point will be। so हमारे पास इंक्लाइन टाइप का मोशन है यहाँ पे, और पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है, और ये प्रोजेक्टाइल पाथ है पार्टिकल, जो इनिशियल एंगल है वो 45 डिग्री है। नाउ वी नो जब पार्टिकल अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होता है तो जो उसकी वेलोसिटी होती है उसके पास ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, जो कि होता है v cos थीटा i, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो जीरो हो जाता है ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। सो मींस हाईएस्ट पॉइंट पे पार्टिकल के पास ये वेलोसिटी होगी, और इसको आप cos 45 होगा 1/√2। सो v फाइनल हो जाती है v/√2। तो जो आपकी काइनेटिक एनर्जी आएगी फाइनल या हाईएस्ट पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी आएगी, इट विल बी हाफ mv²/2। और ये जो हाफ mv² है इट इज इंटू हाफ, ये क्या है आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इसको आप k पुट कर सकते हैं, और k/2। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नाउ अगेन चेंजेस वाला क्वेश्चन है, मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इंक्रीज बाय 50%, देन परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो सिमिलरली हमने जो अभी रिसेंटली क्वेश्चन किया था उसमें हमने मोमेंटम के लिए फॉर्मूला बनाया था, सॉरी काइनेटिक एनर्जी के लिए जो एनर्जी थी इट वाज 2mp और सॉरी इंटू के ई। लेट मी रीराइट दिस फॉर्मूला, यहाँ पे हमें कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा। सो हाँ, सो एनर्जी इज p²/2m। ये हमारे पास बेसिक रिलेशन होता है। अब इसमें बोला गया मोमेंटम में चेंज हुआ है 50%। सो जो न्यू एनर्जी आ जाएगी, बिकॉज जो मोमेंटम था वो इंक्रीज हो गया आपका 50% से, तो न्यू मोमेंटम हो गया p प्लस 50/100 इंटू p, और इट विल बी 3p/2। ये आपका जो न्यू मोमेंटम है वो हो गया। सो न्यू एनर्जी विल बी 3p/2 होल स्क्वायर बाय 2m, और इट विल बिकम 9/4 p²/2m। और जो p²/2m है ये आपके ओल्ड एनर्जी का फॉर्मूला है, सो इट विल बिकम्स 9/4 इंटू ई।
सो डेल्टा ई आ जाएगा, यानी चेंज इन एनर्जी ई डैश माइनस ई इक्वल्स टू 9/4 ई माइनस ई। जब आप इसको सोल्व करोगे इट विल बी 5/4 ऑफ ई। एंड फ्रॉम यहाँ से हम परसेंटेज चेंज बना सकते हैं। जो डेल्टा ई की वैल्यू आई है 5/4 इंटू ई, सो डेल्टा ई बाय ई इक्वल्स टू 5/4 इक्वल्स टू 1.25। और अगर आप परसेंटेज में कैलकुलेट करना चाहते हैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट विल बी 125। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय मास m in traveling distance d from starting from rest। सो रेस्ट से स्टार्ट होता है, यानी कि u 0 है, डिस्टेंस की वैल्यू d गिवन है, अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स। सो फोर्स इज कांस्टेंट। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स बाय मास, और मास भी गिवन है मास m। सो हमारे पास एक्सेलरेशन गिवन है, स्टार्टिंग वेलोसिटी पता है, और d डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, तो फाइनल वेलोसिटी वी कैन कैलकुलेट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस a s। सो v स्क्वायर विल बी ट्वाइस, एक्सेलरेशन इज f by m एंड डिस्टेंस इज d। सो v स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है 2fd by m। और हमें काइनेटिक एनर्जी बतानी है, सो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m v स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2ft बाय m। और आप अगर ये देख पाए नॉर्मली इट इज फोर्स इनटू डिस्टेंस, जो कि वर्क के इक्वल होता है। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमें ये बताना है कि इसमें m की पावर क्या आ रही है। सो ऑप्शन बी m रेज टू पावर 0। अभी आपको कुछ डाउट आ सकता है कि सर फोर्स भी तो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, कि फोर्स में भी तो मास इनटू एक्सेलरेशन आता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं MAD, और यहाँ से m रेज टू पावर 1 आ जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। नो, वाई? बिकॉज अगर आपको एक्सेलरेशन गिवन हो तब आप एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई करके फोर्स बनाते हो, देन जो आपका फोर्स है वो मास पे डिपेंड करता है। और अगर एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट हो जाए देन फोर्स भी कांस्टेंट हो गया। तो और यहाँ पे फोर्स की वैल्यू आपको डायरेक्ट गिवन है, तो आप इसको फोर्स को यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन पुट नहीं करोगे, ओनली फोर्स इंटू डिस्टेंस लोगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। Two masses of 1 gram and 9 gram are moving with equal kinetic energies. The ratio of magnitude of their respective linear momentums. So ये बोला गया है E1 is equal to E2, एंड हमें ये पता है जो काइनेटिक एनर्जी होती है P स्क्वायर बाय 2m। सो फ्रॉम दिस P1 स्क्वायर बाय 2m1 is equal to P2 स्क्वायर बाय 2m2, एंड यहाँ से हम कैंसिल कर देते हैं, और हमें लीनियर मोमेंटम का ही रिलेशन फाइंड आउट करना है। सो P1 स्क्वायर बाय P2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 बाय m2, एंड फ्रॉम हेयर P1 बाय P2 इज इक्वल टू अंडर रूट m1 बाय m2। मासेस की वैल्यू पुट कर सकते हैं जो कि गिवन है 1 and 9 ग्राम्स। सो अंडर रूट 1/9 इज इक्वल टू 1/3। सो 1:3, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। A particle of mass m moving in horizontal circle of radius r with uniform speed. When it moves from one point to diametrically opposite point, its kinetic energy changes by this. Momentum does not change. Momentum change by 2mv. Kinetic energy changes by mv square. So let me draw the circle first. तो सपोज कीजिए ये पार्टिकल आपका इस सर्कल में रोटेट हो रहा है। स्टार्टिंग में पार्टिकल इस पॉइंट पे है, और कुछ पॉइंट टाइम के बाद वो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे चला जाता है, यहाँ पे आ जाता है, और जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा वो डायमीटर के इक्वल होगा। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है।
अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ए पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो अपवर्ड है, मीन्स हम इसको पॉजिटिव मानते हैं, यानी कि v इंटू जे है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। और बी पॉइंट पे वेलोसिटी नेगेटिव है, सो माइनस वी जे है। तो ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं, हम बिकॉज यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम ही दिया गया है। सो काइनेटिक एनर्जी एट ए पॉइंट हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वेयर, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, वहां पे वेक्टर से डिफरेंस नहीं आता। एंड के बी हो जाएगा अगेन हाफ एम वी स्क्वेयर। तो डेल्टा कितना है, चेंज कितना हुआ दोनों में, मैग्नीट्यूड सेम है तो चेंज जीरो है। सो फर्स्ट ऑप्शन काइनेटिक एनर्जी चेंजेस बाय दिस, ये भी गलत है। ऑप्शन डी भी गलत है। नाउ कमिंग टू मोमेंटम, कि मोमेंटम में कितना चेंज आता है। सो मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो पी एट ए पॉइंट पे मोमेंटम होगा एम वी जे, एंड बी पॉइंट पे मोमेंटम हो जाएगा माइनस एम वी जे, बिकॉज यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में। और अगर आप यहां से चेंज निकालते हो, डेल्टा पी विल बी पी बी माइनस पी ए, it will be minus mvj minus mvj, तो it will be minus 2mvj। और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आपको 2mv मिलेगा। सो ऑप्शन सी। अगर आप यहाँ पे नेगेटिव पे डाउट आ रहा है कि सर यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, तो आप ऑप्शन बी देखिए, यहाँ पे लिखा मैग्नीट्यूड डज नॉट चेंज। तो मैग्नीट्यूड चेंज तो हो रहा है, हमारा सिर्फ साइन में अपोजिट आ रहा है। तो वो डिपेंड अपॉन कि अगर आप कंडीशन क्या लेते हो। अगर आप इसको रिवर्स ले लेते, ये आपका ऊपर हो जाता और ये नीचे आ जाता, तो आपको एग्जैक्टली 2m भी मिल जाता। सो इस इन सिनेरियो में आपको ऑलवेज मैग्नीट्यूड ही देखना है, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट, बी भी रॉन्ग होगा। मैग्नीट्यूड तो यहाँ पे चेंज हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। फोर्स गिवन है ऑन पार्टिकल वाई डायरेक्शन में एक्ट करता है। एफ इज इन न्यूटन, वाई इज इन मीटर, वर्क डन बताना है y 0 to 1 मीटर पे। सो फोर्स इज 20 प्लस 10y, एंड y वेरी कर रहा है 0 to 1। सो हमारे पास जो फोर्स होता है इट इज f डॉट डी एक्स, ये हो जाएगा x डायरेक्शन की तरफ से, x कंपोनेंट का। सिमिलरली हो जाएगा f डॉट डी वाई, वाई कंपोनेंट का, और अगर z होता तो z का भी आ जाता। और यहाँ पे हमारे पास x तो है नहीं, तो इसको हम नहीं लेंगे, ओनली y को लेंगे। सो force is 20 plus 10y into dy, y is 0 to 1, इंटीग्रेट करते हैं, इट विल बी 20y प्लस 10y स्क्वायर बाय 2 1 0। तो जब जीरो पुट करोगे तब तो सभी जीरो हो जाएगा, ओनली 20 हम 1 पुट करते हैं, तो इट विल बी 20 इंटू 1, और ये आपको देगा 5y स्क्वायर, यानी कि 5 इंटू 1 स्क्वायर। सो आंसर विल बी 25 जूल, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। सो ऑब्जेक्ट ऑफ मास 500 ग्राम इनिशियली एट रेस्ट acted upon by a variable force whose x components varies with x in manner as shown. Velocity of the object a point 8x is equal to 8 and x is equal to 12 meter would be the respective values nearly। तो हमें वेलोसिटी की वैल्यू बतानी है x इज इक्वल टू 8 पे और x इज इक्वल टू 12 पे। तो अगर आपको ये थोड़ा शॉर्ट में दिखाई दे रहा है तो लेट मी जूम इट फॉर यू। So here it is. So hopefully अभी आप इसको थोड़ा क्लियर देख पा रहे होंगे डायग्राम को। So हमें अब यहाँ पे वेलोसिटी बतानी है। अगर आप डायग्राम देखें तो ये डायग्राम है फोर्स वर्सेस डिस्टेंस का। सो अगर हमारे पास फोर्स वर्सेस डिस्टेंस का डायग्राम है और अगर हम वहां से एरिया कैलकुलेट करते हैं तो एरिया से हमें मिलेगा एनर्जी और वर्क।
एंड हमें वर्क एनर्जी थ्योरम से ये पता है दैट जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा वो किसके इक्वल होगा, वर्क के इक्वल होगा। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, के फाइनल माइनस के इनिशियल इज इक्वल टू वर्क, जो हम इसके एरिया से कैलकुलेट करेंगे। और स्टार्टिंग में पार्टिकल किस पे है, रेस्ट पे है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई 0। तो के फाइनल हो जाएगा इक्वल्स टू वर्क। सो फर्स्ट ऑफ ऑल के इज इक्वल टू 8 सेकेंड के लिए अगर हम एरिया कैलकुलेट करें तो हमारे पास, अगर आप देखते हैं अप टू 8 सेकेंड तो हमारे पास दो स्क्वायर बनते हैं। एक तो पहले वाला ये स्क्वायर है, स्क्वायर और रेक्टेंगल, और अप टू 8 फिर हमारे पास ये एक रेक्टेंगल बनता है। तो हम दोनों का एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट का एरिया हो जाएगा 20, जो कि इसके लिए हाइट है, ये हो जाएगा 20, और जो हमारे पास ये वैल्यू है दिस विल बी 5। सो 20 इंटू 5 प्लस जो स्मॉल वाला रेक्टेंगल है इसकी हाइट हो जाएगी 10, और जो इसका जो बेस हो जाएगा वो होगा 8 माइनस 5 दैट विल बी 3। सो 100 प्लस 30 इट विल बी 130। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 130 के इक्वल। एंड अगर हम इसको फर्दर कैलकुलेट करें, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 130, और जो मास है, मास की वैल्यू है 500 ग्राम्स यानी कि 1/2। सो हाफ इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू 130, और यहाँ से वी स्क्वायर आ जाता है 130 इंटू 4 520, और जो v की वैल्यू आएगी रूट ऑफ 520। और जब हम इसको फर्दर कैलकुलेट करते हैं, जो 520 का हमारे पास रूट आएगा इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 22.8 मीटर पर सेकेंड, और यानी कि 23, इसको अप्रोक्सीमेटली हम 23 लिख सकते हैं। तो हमारा अगर ऑप्शन अगर आपको दिखाई दे तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में फर्स्ट आंसर 23 है। सो मीन्स हमारा यहाँ पे आंसर इन दोनों में से कोई एक होने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे ये बोला गया कि x इजिकल टू 12 मीटर पे हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो आप उसको एक थोड़ा सा ट्रिक से भी एज इट इज विदाउट कैलकुलेशन कैलकुलेट कर पाओगे। अगर आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो कि आपके पास यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल है, ये मीन्स जो ये वाला पार्ट है इट इज लाइक दिस, ये इसके ऊपर यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, तो आपको यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया भी कैलकुलेट करना होगा। सो यहाँ पे एक आपके पास एक नेगेटिव एरिया बन रहा है। अगर आप यहाँ पे ओनली रेक्टेंगल कंसीडर करो, ट्रायंगल को भी लीव कर दो, देन आपके पास जो इसकी हाइट है दैट इज -20, और इसका बेस है दैट इज 2। सो ये आपको -40 का कंट्रीब्यूशन देगा। और अगर आप यहां से देखते हो, जो नेक्स्ट पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होगा इट विल बी, यहां से आपको इसका बेस 2 मिलेगा और इसकी हाइट आपको 10 मिलेगी, यानी यहाँ पे आपको 20 का कंट्रीब्यूशन मिलेगा, +20 का, यानी कि इन नेट आपको -20 यहां से डिक्रीज हो जाएगा। जो ये आपका 130 एरिया था पहले यहाँ पे बन रहा था, इसमें से -20 डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि आपकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होगी ना कि इंक्रीज होगी। तो अगर आप यहाँ पे ऑप्शन देखते हो, इसमें इन वेलोसिटी इंक्रीज हुई है और यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हुई, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तो ये तो हमने यूजिंग थोड़ी सी ट्रिक हमने इसको सॉल्व कर लिया, बट अब हम एक्चुअल वे में इसको सॉल्व करने जाएंगे और आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। सो लेट मी रब दिस। सो अप टू 8 सेकेंड हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो वहां तक हमें नहीं करना। अब हमें 8 to 10 और 10 to 12 है जो वो कैलकुलेशंस करनी है। सो फॉर दैट जो हम ये वाला पार्ट है इसको थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे साइड में प्लॉट करते हैं, सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग इजी रहे। तो ये हमारी एक्स डायरेक्शन है और यहाँ पे हमारे इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। ये 10 वाला पॉइंट है, ये
सॉरी, ये 8 वाला पॉइंट था, ये 10 वाला पॉइंट है, और इनसे ऊपर ये ऐसे एक ट्रायंगल बन रही है। और जो आपकी ये लाइन है, लेट मी एडजस्ट इट स्लाइटली, ये लाइन किसको डिनोट करती है? -25 को। और जो यहाँ पे लाइन है ये डिनोट करती है -20 को। तो जो इसका अपर पार्ट है, जब आप इसका एरिया कैलकुलेट करोगे तो इट इज 8, इट इज 10, सो अपर पार्ट का एरिया आ जाएगा -20 इंटू 2, प्लस जो आपके पास ये लोअर पार्ट बचेगा, ये आपके पास क्या हो जाएंगी? 2 ट्राइंगल्स हैं, राइट एंगल ट्राइंगल्स, और इनका एरिया, बिकॉज दोनों का एरिया इक्वल होगा, सो ट्वाइस इंटू हाफ। जो इनका बेस है वो 1 का होगा, बिकॉज ये ऐसे 9 पे जाएगा, ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं। सो बेस 1, और हाइट हो जाएगी -5 की, 20 टू 25, -5 की हाइट। सो यहाँ से आप करते हो तो इट विल बी -40, एंड यहाँ से आपको मिलेगा -5, तो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा -45 का, तो यहाँ पे एक -45 की टर्म आ जाएगी। एंड जो आपका ये वाला पार्ट है, इसका कंट्रीब्यूशन 10 इंटू 2, इसका बेस 2 का है और इसकी हाइट 10 की है, सो इसका कंट्रीब्यूशन आएगा 20 का, मींस ये हो जाएगा आपका 150 -45, 105। और जब आप इसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला के इक्वल रखोगे, फ्रॉम दिस फॉर्मूला की तरह, अगेन हाफ mv² इज इक्वल टू 105, मास इज हाफ, सो v² हो जाएगा 105 इंटू 4 और 210, सॉरी नॉट 210, 420, 420। और फिर जब वेलोसिटी के लिए आप इसका अंडर रूट करोगे तो यू नो दैट 20 का स्क्वायर रूट होता है और 400 का स्क्वायर रूट होता है 20, और 21 का समथिंग 441, तो ये दोनों के बीच में लाई करेगा, आई थिंक 20.5। तो अगर हम आंसर मैच करते हैं, सो ये 20.6, और ये ऑप्शन हमारा राइट मैच होता है ऑप्शन सी के साथ। और अगर आपको ये थोड़ा इसके आंसर्स नहीं दिख रहे तो लेट मी जूम इट स्लाइटली सो दैट आप इसको देख पाए। सो दीज आर द ऑप्शंस, या आप इसको वीडियो रोक के जूम करके देख सकते हो। सो लेट्स बैक टू ओरिजिनल एंड नेक्स्ट क्वेश्चन। So force F on a particle moving in straight line varies with distance F shown in a figure. The work done on the particle during its displacement of 12 meter is। सो यहाँ पे हमें वर्क डन बताना है, और जो ये पॉइंट है दिस इज 12 मीटर, ये थोड़ा जो 12 मीटर है थोड़ा आगे लिखा गया है। और यहाँ पे एक और ट्रिक है जो क्वेश्चन में यूज की गई है, थोड़ी सी मीन्स आपको मिसगाइड करने के लिए यूज की गई है। जो पार्टिकल है वो 3 से स्टार्ट हो रहा है, अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो ये देखो स्टार्टिंग में ये डोटेड लाइन है। यहाँ पे डोटेड लाइन का मीनिंग होता है कि ये जस्ट आपको वैल्यू शो करने के लिए लाइन डाली गई है, ना कि यहाँ पे एक्चुअल मोशन है। पार्टिकल एक्चुअली 3 से स्टार्ट होता है और 12 पे फिनिश हो जाता है। तो जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट इसमें इंक्लूडेड नहीं है। सो जो टोटल वर्क होगा वो क्या होगा, 3 to 7 जो हमारे पास एरिया आएगा, एंड फिर 7 to 12 जो हमारे पास एरिया आएगा। तो 3 to 7 जो हमारे पास एरिया आएगा, इट विल बी, जो बेस हो जाएगा 7 - 3 इज इक्वल टू 4 इंटू 2, प्लस ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सो इट इज हाफ, बेस हो जाएगा इसका 12 - 7 दैट इज 5, और जो हाइट है इट इज 2, सो इट विल बी 8 + 5 इक्वल टू 13 जूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A body of mass 3 kg is under a constant force which causes a displacement s in it given by displacement की वैल्यू गिवन है, work done by the force in 2 seconds। So s is equal to 1/3 t²। Let me write it। तो हमारे पास जो फोर्स का फॉर्मूला होता है
सॉरी वर्क का dw इज इक्वल टू एफ डॉट ds होता है, नॉट dt। तो हमें यहाँ पे ds की वैल्यू चाहिए होगी। सो व्हाट वी डू, यहाँ से ds की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, दोनों साइड का डेरिवेटिव कर देंगे। सो ds विल बी 2t dt बाय 3। बिकॉज हमें ये नहीं पता हम किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं इसको, कि दोनों साइड का डेरिवेटिव कर दिया। इसका डेरिवेटिव ds हो गया 1/3 एज इट इज, टी स्केयर का डेरिवेटिव 2t, और जो t है उसका डेरिवेटिव 2d और dt। सो नाउ हमें हमारे पास ds तो आ गया, बट हमें फोर्स चाहिए, और फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि हमें एक्सेलरेशन चाहिए। और एक्सेलरेशन कैसे आएगी, वेलोसिटी से। इससे हम वेलोसिटी बनाएंगे। वेलोसिटी यहाँ से अगेन बनाई जा सकती है कि आप dt को नीचे ले आए, तो ds बाय dt क्या हो जाएगा, इट विल बी 2/3 ऑफ t। तो ये हो गया वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन होता है dv by dt, so it will be 2/3। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। मास हमें गिवन है 3 kg, सो 3 इंटू 2/3 इक्वल टू 2 न्यूटन। ये आ गया फोर्स, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। dw इज इक्वल टू एफ यानी कि 2, ds यानी कि 2t dt बाय 3। और आप देखिए यहाँ पे dt है, यानी कि इंटीग्रेशन किस में होगी, टाइम में होगी, और टाइम की वैल्यू हमें गिवन है 2 सेकेंड्स, यानी कि 0 से स्टार्ट होके 2 पे एंड करना है। सो इट विल बी 4/3 t dt की इंटीग्रेशन क्या होगी, t स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स t टू 0। तो ये हमें देगा 4/3 इंटू 2 स्क्वायर बाय 2, ये कैंसिल हो जाएगा, एंड इट विल गिव अस 8/3 joules। Option D will be the right answer. Next question. Force acting on an object varies with distance as shown in the figure. Force N is in x, force is in Newton, x is in meter। वर्क डन बताना है 0 to लेके 6 तक हमें कितना वर्क डन किया। सो अगेन यहाँ पे देखिए ग्राफ प्रॉपरली स्टार्ट हो रहा है, डॉटेड लाइन बीच में है, मीन्स ये तो सिर्फ वैल्यू शो करने के लिए की गई है। तो जो वर्क है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया के इक्वल, और कब तक, 6 तक। तो यहाँ पे 6 तक हमें एरिया कैलकुलेट करना होगा। तो ये एक रेक्टेंगल बनेगा, और रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा, बेस इसका 3 है और हाइट भी 3 है, यानी कि ये तो एक स्क्वायर है, प्लस हाफ ये एक ट्रायंगल बन रही है। ट्रायंगल की बेस हो जाएगा 6 - 3 दैट इज 3, और हाइट अगेन इज 3। सो 9 + 9/2 यानी कि 4/4.5 इक्वल टू 13.5 जूल। Option B will be the right answer. Force act on a 3-gram particle in such way that position of the particle as a function of time given by, so position given है 3t minus 4t square plus t cube, x is in meter, t is in second, work done in first 4 second। तो t is equal to 4 तक कितना वर्क होगा हमें वो कैलकुलेट करना है। नाउ दिस क्वेश्चन कैन बी डन इन 2 वेज। फर्स्ट आप क्या हो सकता है कि आप ये प्रोसेस यूज करो, दैट वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस। यहां से आप dx की वैल्यू निकालो जो कि dt की टर्म्स में आएगी। dx आ जाएगा 3 - 8t प्लस 3t स्क्वायर इंटू dt। देन आप ये फिर यहाँ से वेलोसिटी बनाओ, वेलोसिटी से फिर आप एक्सेलरेशन बनाओ, एक्सेलरेशन से आप फोर्स बनाओ। वो वैल्यू यहाँ पे पुट करो, ds की वैल्यू यहाँ पे पुट करो और इंटीग्रेट कर दो 0 to 4। ये होगी एक लॉन्ग प्रोसेस, और आपका क्वेश्चन और डिफिकल्ट होता जाएगा। इसके लिए एक बेटर प्रोसेस ये है कि आप जो वर्क है, वी नो दैट फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम दैट जो वर्क होता है, वर्क इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लें, एट इज इक्वल टू
t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे और t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें नॉर्मली वर्क मिल जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी। सो वेलोसिटी हम इस फॉर्मूला से यहीं से निकाल सकते हैं। वेलोसिटी हो जाएगी dx बाई dt इक्वल टू 3 माइनस at प्लस 3t स्क्वायर। सो ये हो गई वेलोसिटी। नाउ वेलोसिटी एट टाइम इज इक्वल टू 0 पे हो जाएगी, यहाँ पे आप 0 पुट कर दोगे तो ये 3 आएगा, सिंपल। और जब वेलोसिटी को आप टाइम इज इक्वल टू 4 पे कैलकुलेट करोगे, इट विल बी 3 माइनस 8 इंटू 4 32 प्लस 4 स्क्वायर 16 इंटू 3 48, और ये आपको देगा 15 और ये देगा आपको प्लस 3 18 आई थिंक मीटर पर सेकेंड, नॉट 18 19 मीटर पर सेकेंड। ये 16 देगा सब्ट्रैक्ट होके, और ये 3 दे रहा है 3 मीटर पर सेकेंड। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर। m बाय 2 हम कॉमन ले लेंगे, और मास कितना है हमारे पास, मास इज 3 ग्राम्स। सो 3 इंटू 10⁻³ किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया बाय 2, ये है वी एफ स्क्वायर यानी कि 19 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। और इसको हम स्क्वायर करके सोल्व ना करते हुए व्हाट वी डू, सिंपली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी वाला मेथड यूज कर लेंगे। 19 प्लस 3 22 और 19 माइनस 3 16। सो यहाँ पे 11 इंटू 16 इंटू 3, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 528 इंटू 10⁻³ जूल, और 528 मिली जूल विल बी द आंसर। कंपेयर करें अगर, सो ऑप्शन डी के साथ मैच होता है। आगे बढ़ते हैं। फोर्स गिवन है, स्मॉल बॉडी मास 2 kg डिस्प्लेस फ्रॉम x 0 to 5, वर्क डन बताना है। सो इसमें हम इंटीग्रेशन यूज कर सकते हैं, बिकॉज यहां पे हमें जो डिस्टेंस है वो गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, टाइम नहीं गिवन है। अगर टाइम गिवन होता तो हम वहां से रिवर्स कर सकते थे क्वेश्चन को। सो जो वर्क हो जाएगा dw इज इक्वल टू एफ डॉट dx। dx कहां से वेरी हो रहा है, 0 to 5। f इज 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वेयर इंटू dx। तो इसको जस्ट इंटीग्रेट करना है। 7 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 7x, 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एज इट इज, और 2x का एक्स स्क्वायर, प्लस 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब। और जब यहाँ पे हम लिमिट्स पुट करेंगे 5 और 0 की, तो 0 तो सब 0 हो जाएगा। 7 इंटू 5 माइनस 5 इंटू 5 25, एंड 5 क्यूब इज 125। दिस विल बी 35 माइनस 25 प्लस 125, ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 135, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। A particle is released from height s from a surface of earth. At a certain height, its kinetic energy is 3 times the potential energy. The height from the surface of earth and the speed of the particle at that instant are respectively. तो देखिए पार्टिकल को s हाइट से छोड़ा गया है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ होना था, यहाँ पे थोड़ा सा राइटिंग में प्रॉब्लम है। s हाइट से ऑब्जेक्ट को छोड़ा गया। अब ये नीचे की तरफ आएगा, और सपोज ये ग्राउंड है, तो हम यहाँ पे एक रैंडम पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट ए, जिसके ऊपर हम ये पूरा कैलकुलेशन करेंगे। तो इस पॉइंट पे ये बोला गया है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स द पोटेंशियल एनर्जी। तो सपोज कीजिए इसने ये h डिस्टेंस कवर कर लिया। अगर इसने h डिस्टेंस कवर कर लिया है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हो गया, s माइनस h।
तो इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी एट ए क्या होता है? मास इंटू जी इंटू एच, और हाइट ग्राउंड से मेजर होती है, यानी कि एस माइनस एच। ये हो गई उसकी पोटेंशियल एनर्जी। और ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो उसके लिए हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और हम वो कर सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए जी ट्वाइस ए एस, यानी एस कितना है यहाँ पे? डिस्टेंस ट्रेवल। सो वी स्क्वायर एज इट इज, स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 थी क्योंकि उसको रिलीज किया गया था, टू एक्सेलरेशन नेगेटिव है माइनस जी, और एस डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है उसने? एच डिस्टेंस ट्रेवल किया, और ये भी नेगेटिव ही होगा। सो v की वैल्यू आ जाएगी √2gh, और काइनेटिक एनर्जी एट ए पॉइंट आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि 2gh इक्वल्स टू mgh। सो फॉर एज फॉर स्टेटमेंट, काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स द पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि ये 3 टाइम्स है इसका। सो फ्रॉम दिस mgh is equal to 3 times of mgs minus h। फर्दर सोल्व करते हैं, mgh is equal to 3mgs minus 3mgh, और ये इधर आके ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा 4mgh is equal to 3mgs। mg से mg कैंसिल हो जाएगा, और h की वैल्यू आ जाएगी s/4, यानी कि कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है? ये जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है दैट इज s/4। तो ये डिस्टेंस कितना रह गया? s माइनस s/4, यानी कि s माइनस h, इट विल बी 3s/4। नाउ एज पर स्टेटमेंट हमें पूछा क्या गया है? हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, कि उसकी सरफेस ऑफ अर्थ से हाइट कितनी है? दैट इज 3s/4। सो अगर आप ये सभी ऑप्शन देखो, सभी में s/4 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 गिवन है हाइट, मीन्स आइदर ऑप्शंस रॉन्ग है, या फिर एज पर स्टेटमेंट जो ऑब्जेक्ट है उसको ऊपर से रिलीज नहीं किया गया, उसको नीचे से थ्रो किया गया। अगर उसको नीचे से थ्रो किया जाएगा फिर वेरिएबल सारे रिवर्स हो जाएंगे, और उस सिनेरियो में जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट s/4 हो जाएगी। सो देयर इज अ प्रॉब्लम इन क्वेश्चन स्टेटमेंट, और अब हम इसको इस हिसाब से सॉल्व करते हैं कि उसको नीचे से थ्रो किया गया हो, तो उस सिनेरियो में जो उसकी हाइट है दैट विल बी s/4। तो हमारे पास ऐसे 3 ऑप्शन बन जाएंगे जिसमें हाइट s/4 हो। और अगर हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात करें, फिर काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी उस पॉइंट पे? तो फॉर दैट जो वेलोसिटी हो जाएगी, बिकॉज अभी सिनेरियो सारे के सारे चेंज हो जाएंगे, तो उस सिनेरियो में वेलोसिटी हो जाएगी 2g s h, और फिर वेलोसिटी बन जाएगी 2g, और अभी वैल्यू हो जाएगी हमारी s माइनस एच की 3s/4। सो दिस विल बी √3sg/2, एंड फ्रॉम हेयर 3gs/2, ये ऑप्शन हमारा। और ये ऑप्शन देखिए, आप यहाँ पे देखिए दोनों ऑप्शन एक जैसे ही हैं, तो इनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन की कौन सी सिचुएशन है, आंसर वेरी करेगा। और ये क्वेश्चन में थोड़ी क्लैरिटी में प्रॉब्लम है कि उसको h हाइट से रिलीज किया गया है या उसको फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ से फेंका गया है। सो विद दिस आगे बढ़ते हैं हम। What is the minimum velocity with which a body of mass m must enter in a vertical loop of radius r so that it can complete the vertical loop? तो हमने वर्टिकल, अगर आपने वर्टिकल लूप की थ्योरी स्टडी की है इन डिटेल्स, तो यू नो दैट अगर आपके पास एक वर्टिकल लूप है और वहां पे आपको उसका सर्कल कंप्लीट करवाना है, तो आपके पास 3 पॉइंट्स में वेलोसिटी होगी, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, और ये सी पॉइंट। सो एट ए पॉइंट जो उसकी वेलोसिटी है वो शुड बी मिनिमम वेलोसिटी शुड बी 5 √5gr, तभी वो सर्कल कंप्लीट करेगा। इस बी पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी शुड बी √3gr, और इस पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी होती है √gr।
ये तीनों जो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, मीन्स इनमें से अगर एक सेटिस्फाई हो जाती है तो बाकी की तो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो यहाँ पे पूछा गया है मस्ट एंटर इन वर्टिकल लूप, तो लूप के अंदर एंट्री नीचे से होती है ऑलवेज, तो मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए 5√gr। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन ए फोर्स फील्ड के लिए फॉर्मूला गिवन है, ए और बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स, आर इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम सेंटर ऑफ द फील्ड, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल इज। नाउ अगर आपके पास क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मीनिंग होता है जो फोर्स है, फोर्स इज जीरो, मींस नेट फोर्स क्या हो गया आपके पास, जीरो हो गया। एंड सेकंड कंडीशन, जब आपका फोर्स जीरो होगा तब उस सिनेरियो में जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी वो जाती है मिनिमम। सो इस क्वेश्चन को आप टू वेज से कर सकते हो, या तो आप यहां से फोर्स कैलकुलेट करो और उसको जीरो कर दो, तो वहां से आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी, या फिर आप u को मिनिमाइज कर दो, तो उससे भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। एंड जो यहाँ पे बहुत प्रोसेसेस है दोनों एक जैसी ही हैं, बिकॉज जो फोर्स होता है पोटेंशियल एनर्जी से वो आता है -du/dr, और अगर आप इसको जीरो पुट करोगे तभी आपका एफ नेट जीरो होगा। और अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, अगेन आपको du/dr कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसको आप जीरो के इक्वल पुट करोगे तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे, और उस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट मिनिमा या मैक्सिमा होगा, फिर हम उसको चेक करेंगे। सो हम ये वाली प्रोसेस फॉलो करते हैं, du/dr इज इक्वल टू जीरो, एंड स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस रब दिस। सो du/dr हो जाएगा -2a/r³। ये कैसे आया, जो आपका a/r² है आप उसको ऐसे लिख सकते हो, a इंटू आर की -2, और जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो -2 आगे आ जाएगा, a एज इट इज, r की पावर हो जाएगा -2 -1, डेरिवेटिव में पावर में से 1 माइनस होता है, सो दैट्स हाउ इट विल बी -2a/r³, ऐसे आएगा। एंड दिस विल बी, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, इट विल बी b/r²। नाउ अब इसको आप जीरो के इक्वल पुट करोगे तो -2a/r³ प्लस b/r² इज इक्वल टू जीरो, और जब जीरो के इक्वल पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2a/r³ इज इक्वल टू b/r², स्क्वायर से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, आपके पास r बचेगा, और यहाँ से r की वैल्यू आएगी 2a/b, ये आपके पास r की वैल्यू आ जाती है। नाउ अभी आपके पास पॉइंट तो आ गया कि ये पॉइंट पे ये फंक्शन या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, वो कैसे चेक करोगे आप फिर से सेकंड डेरिवेटिव लोगे, d²/dr², ये जस्ट आप रेफरेंस के लिए चेक करने के लिए, वरना आंसर तो आपका यही होने वाला है। सो जब आप ये करोगे तो इट विल बी 6a/r4 माइनस 2b/r³, और जब आप r की वैल्यूज यहाँ पे पुट करोगे, व्हाट वी डू, यहाँ से हम 1/r³ कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 6a/r माइनस 2b, और जब r की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो इट विल बी b/2a का क्यूब 6a/r यानी कि 2a इंटू b, 2a/b माइनस 2b, सो दिस गिव अस 3b माइनस 2b, यानी कि 3b माइनस 2b एक पॉजिटिव टर्म होगा, बिकॉज b और a बोथ पॉजिटिव है। सो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो आपको क्या मिल रही है, पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो मींस आपका जो पॉइंट है वो मिनिमा पॉइंट होता है, अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो आपका जो पॉइंट है वो मैक्सिमा पॉइंट होता है। तो इस वैल्यू पे डेरिवेटिव मिनिमम है, यानी कि वैल्यू भी मिनिमम होगा। सो आंसर विल बी ऑप्शन बी 2a/b। आगे बढ़ते हैं, एंड दिस विल बी आवर टुडेज लास्ट क्वेश्चन आई थिंक। Potential energy of a system increases if work is done upon the system by non-conservative force, by
by the system against the conservative force, by the system against a non-conservative force upon the system by a conservative force. So first of all, conservative force कौन से होते हैं? जहाँ पे एनर्जी कंजर्व रहती है, और नॉन कंजर्वेटिव जहाँ पे एनर्जी कंजर्व नहीं रहती. तो अगर आप नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो वो तो एनर्जी को ऑलवेज डिक्रीज ही करेगा, लाइक फ्रिक्शन, वो काइनेटिक एनर्जी को और वेलोसिटी को रिड्यूस करता जाता है. तो नॉन कंजर्वेटिव तो यहाँ पे डायरेक्टली कैंसल आउट हो जाते हैं. सो ए और सी तो यहीं पे कैंसल हो गए. नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीज, की सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज हो रही है. तो अगर आप ग्राउंड वाला एग्जांपल लो, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कि आपके ये ग्राउंड है और ये ऑब्जेक्ट है. पहले ये था h1 हाइट पे, अब आप इसको ऊपर ले जाते हो और अब इसकी हाइट हो जाती है h2. तो इसकी इनिशियल काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी थी दैट इज mgh1 थी, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई mgh2. तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई, मींस जो कंजर्वेटिव फोर्स है वहां पे वर्क डन करना पड़ रहा है, उस वहां पे जो आपकी एनर्जी इंक्रीज होती है. सो अब आपके पास ऑप्शन बचता है कि बाय द सिस्टम वर्क डन होगा या अपॉन द सिस्टम वर्क डन होगा. सो इन दिस सिनेरियो आप इतना तो यहां से देख सकते हो इस डायग्राम से कि ग्रेविटी है जो नीचे की तरफ एक्ट करती है और ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है. और ऑब्जेक्ट अपने आप ऊपर की तरफ नहीं जाता, उसको आपको एक वेलोसिटी देनी पड़ती है, तब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता है. मींस ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है और जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो उसके अगेंस्ट काम कर रहा है. तो इस सिनेरियो में जो कंजर्वेटिव है वो फोर्स है वो अगेंस्ट काम कर रहा है, और जो ऑब्जेक्ट है वो उसके अगेंस्ट जा रहा है. तो सिस्टम यहाँ पे वर्क कर रहा है, जो ऑब्जेक्ट है वो वर्क कर रहा है ऊपर जाने के लिए विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स. तो आंसर होगा बाय द सिस्टम अगेंस्ट ए कंजर्वेटिव फोर्स. आपको ये भी लग सकता है यहाँ पे कि जब ये ऑब्जेक्ट h1 से h2 पे गया तो यहाँ पे ग्रेविटी ने वर्क किया. नोट, ग्रेविटी ने वर्क नहीं किया. ग्रेविटी वर्क कर कब काम करती? जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा होता, तब ग्रेविटी ऑटोमेटिकली उस पर वर्क करती. बट नाउ इन दिस सिनेरियो ऑब्जेक्ट ऊपर गया है तो ऑब्जेक्ट ने वर्क किया है ग्रेविटी के अगेंस्ट. सो दैट्स व्हाई बाय द सिस्टम अगेंस्ट द ग्रेविटी. और अगर ये नीचे आता तो देन ये होता है बाय द अपॉन द सिस्टम बाय ए कंजर्वेटिव फोर्स. तो उस केस में जो एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही होती. यहाँ पे इंक्रीज की बात हो रही है. पोटेंशियल एनर्जी अगर इंक्रीज हो रही है तो बाय द सिस्टम अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स. अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो देन अपॉन द सिस्टम बाय द कंजर्वेटिव फोर्स. सो विद दिस हम इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं. And we have completed today's target of 20 question, and hopefully we will wrap up this whole chapter in 2 more videos, 2 or I think max 3 videos if some question takes time. So अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हुई हो, then do like this video, share it as much as possible, and subscribe to our channel. And also if you want to support us, then you can scan this QR code and donate whatever amount you want. उससे हमें बेटर बुक्स और एक बेटर कंप्यूटर हार्डवेयर लेने में मदद मिलती है, जिससे हम आपके लिए और बेटर क्वालिटी में और बेटर क्वेश्चंस की वीडियो लेके इन फ्यूचर आ पाएंगे. सो विद दिस आई sign off for today. Keep on watching, keep on sharing, keep on subscribing, and thanks for watching.